telling कि the theory that we have done yesterday or the quantity theory of money, इसमें हमने पहले फिशर्स का अप्रोच किया, under which he mentioned about the functional relationship that exists between the quantity of money and price level, right? As quantity of money increases, prices also increases, right? And regarding the value of money, there is an inverse relation between the quantity of money and value of money. That is what every classical the Cambridge economist also says the same thing, right? There are a few economists who belong to the Cambridge University, right? Pigou, Marshall, Robertson, right? Keynes. So that is why this approach is also known as the Cambridge cash balance approach, right? So what is their view is similar to the Fisher's approach, right? But they have considered they have propounded the theory in a different manner. That वो किस तरह से, as Fisher has said कि the demand for he has not mentioned about the demand for money. He said it will remain constant, right? It will remain constant over a period of time, and due to the changes in supply of money only, it happens that the changes in price level and as well as value of money will be brought, right? So price he considered as a passive factor, but he has taken only one side, right? We have mentioned in the criticism as well that the theory is, the approach is lopsided, where he is mentioning about only the supply of money side, right? Not the demand for money side. Whereas Cambridge cash balance approach says that in determining the value of money, both demand for money and supply of money plays an equal role, right? जहाँ पे दोनों बैलेंस में होंगे, that means equilibrium में होंगे demand for money and supply of money, there the value of money will be determined, right? This is how value of money will be determined. So they have took the demand side also, right? They have mentioned कि supply of money is done by an external agency, जैसे कि एक monetary authority द्वारा किया जाता है, right? So एक particular point of time में वो change नहीं होता है. So it is due to the changes in demand for money that brings about changes in the price level, right? वो demand for money उनके according किस लिए किया जाता है? For the precautionary motive and for the transaction motive, right? ट्रांजेक्शन मोटिव मतलब कि दिनचर्या की खर्चे के लिए आपको ब्रेड लेना है, दूध लेना है, चावल लेना है, राशन लेना, साबुन लेना है, राइट? दैट इज डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए. दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, आप अपने लिए पैसा कुछ बचा के रखते हो अपने पास, आज खर्च नहीं करके, ताकि मुझे आने वाले दिनों में कहीं पे मेरे को कुछ इमरजेंसी हो जाए, मेरे फैमिली में कोई बीमार हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, उसके लिए आप पहले से ही पैसे सेव करके पैसे रख लेते हो अपने पास कि इमरजेंसी में मैं इसको यूज करूंगा, राइट? सो दैट इज दी प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट? सो इन दोनों पर्पसेस के लिए इनके अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी किया जाता है. दैट इज डिमांड फॉर कैश होल्डिंग, डिमांड फॉर करेंसी होल्डिंग, राइट? और ये डिमांड फॉर मनी जो है, दैट इज द पोर्शन ऑफ द इनकम दैट पीपल कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश होल्डिंग, करेंसी के रूप में अपने पास रखेंगे. दैट मीन्स वो डिमांड वस्तुओं और सेवाओं के उस अमाउंट से नहीं करेंगे, राइट? सो हाउ इट इज रिलेटेड? डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, दैट मीन्स कैश होल्डिंग लोग अपने पास ज्यादा रखना चाहेंगे फॉर द ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, तो प्राइस लेवल घटेगा क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, राइट? और अगर ये डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा, मतलब कि लोग अपने पास प्रेफर कर रहे हैं कैश होल्डिंग ज़्यादा ना रखें, तो इन दैट केस आपका प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी होगा उससे वो लोग कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे. सो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल गेट इंक्रीज अगेन. है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही बेस्ड है थियरी, राइट? सो सब आउटपुट में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच ऑल्सो अज्यूम्स दैट दी टी, दैट इज लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट या रियल इनकम जो भी बोले वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल रिमेन कांस्टेंट. सो इन दैट केस अगर वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी तो इट विल ऑटोमेटिकली लीड ओनली टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस,
राइट. सो डिमांड फॉर मनी और वैल्यू ऑफ जो प्राइस लेवल है, दैट बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. Whereas if demand for money, that is चलिए आगे इसको इक्वेशन में समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा. So this is the Cambridge equation, right? M here stands for the supply of money, right? K, I have told you, is the demand for money. That is the ratio of the cash balances from the total monetary value of transactions in an economy, right? That will be kept in the form of cash holding, right? So इस PT का वो पोर्शन, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल ट्रेड ट्रांजेक्शन का, दैट इज मॉनेटरी इनकम का वो पोर्शन विच इज बीइंग केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश होल्डिंग, दैट इज डिमांड फॉर मनी, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन गिवन बाय, यहाँ पे आपका वेलोसिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, राइट. वेलोसिटी की प्रॉब्लम हमने देखी थी कि जब हम लोग फिशर की अप्रोच में MB, राइट, वेयर ही हैज टेकन अ फ्लो अप्रोच, जहाँ पे मनी स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को दिखाया था. बट क्रिटिसिज्म में हमने देखा वेलोसिटी इज टेक्निकली इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, राइट. वेलोसिटी को मापना कठिन है. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी को इग्नोर ही कर दिया, राइट, अंडर द सप्लाई ऑफ मनी. सो सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू K stands for the ratio of cash balance to the total monetary value of the total trade transaction or the monetary income in the economy भी बोल सकते हो. Price multiplied by total trade transaction is your monetary income, right? चलिए, so this is the cash holding that people hold with them, right? Now आगे अगर हम लोग इस इक्वेशंस हम लोग देखें वेरियस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिए गया, मार्शल ने दिया है, पिगू ने दिया है, देन रॉबर्टसन एंड देन किंग्स. सो दीज आर द वेरियस इक्वेशंस. सो विल लुक इनटू इट वन बाय वन. सबसे पहले मार्शल का इक्वेशन जो है, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मनी एज ही सेड. तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या है, M इज इक्वल टू KPY, राइट. इक्वेशंस देख के डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन में पर्टिकुलर थिंग्स है वो क्या स्टैंड करते हैं, क्या बता रहे हैं, राइट. M stands for the supply of money, right. K is the fraction of money or the proportion of this real money, P into Y, right, that people will hold in the form of cash balances or demand deposits, right. So that means यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मनी है उसको सिर्फ कैश बैलेंस के रूप में अपने पास ही होल्ड नहीं कर रहा, उसको डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में बैंक में भी जमा वो लोग कर रहे हैं, राइट. तो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है अंडर दी ड्यू टू दिस डिमांड फॉर मनी, चाहे वो बैंक्स में कर रहे हैं चाहे वो अपने पास कर रहे हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को बताया, जबकि फिशर के अप्रोच में हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, दैट मीन्स एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी को देखा था. यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी ये डिमांड फॉर मनी बताता है यहाँ पे, राइट. सो P इज द प्राइस लेवल, राइट, एंड Y stands for your real income of the community, right, aggregate real income. So वो portion K is वो portion of this real income which people wish to hold in the form of cash balance, right. So if we want to draw the value of price from here, this equation हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम P इज इक्वल टू, ये दोनों इधर चले जाएंगे डिवाइडेड बाय, है ना, M डिवाइडेड बाय KY हो जाएगा, राइट. एंड इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका ऑपोजिट 1 अपॉन क्या हो जाएगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मनी. वो हमने कल भी पढ़ा, राइट. द वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल एज वी नो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम लोग उसी क्वांटिटी ऑफ मनी से कम गुड्स और सर्विसेज खरीद पाएंगे ना. सो दैट इज द रीजन वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगा प्राइसेस बढ़ने. सो दैट इज इनवर्सली रिलेटेड, इसीलिए 1 अपॉन P here stands for the value of money. So 1 upon P करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और M नीचे आ जाएगा, KY upon M. If we want to draw the value of money, right? All right. So here price level is directly proportional to the money supply, right? As we can see here, price is equal to M. If this increases, this will also increase, है ना. So there is a direct and proportionate relation, जैसा सभी
हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, फिशर के भी और अभी कैम्ब्रिज कैश बैलेंस में भी, राइट। And price level is inversely proportional to aggregate real income and the proportion of real income which people wish to hold in the form of cash. This is real income and this is the portion of real income which people wish to hold in the form of cash balances, right? So both are inversely related, है ना, ये नीचे है denominator में, right? So that is the reason. M and Y being constant, if we assume that money supply is given and Y remaining constant, so with increase in K, अगर कैश होल्डिंग लोगों की बढ़ेगी प्राइस लेवल घटेगा, मैंने बोला इनवर्सली रिलेटेड है, एंड अगर के घटेगा, राइट, तो प्राइस लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली, राइट. So both are inversely related, that is demand for money and price level here are inversely related, right. And if we assume K as also be constant with this M and Y in that, sorry, with this Y real income, so in that case, if supply of money only increases, if RBI or the central bank feels कि हमें supply of money बढ़ाना है economy में, then it will only lead to increase in prices. क्योंकि K और Y को हमने constant मान लिया, तो in that case money supply बढ़ेगा तो price level बढ़ेगा, and if M decreases, price level also falls, right? As we can see here, right? There is a direct and proportional relation between these two. So if these remaining constant, ये इसकी value बढ़ेगी obviously, ये भी उतनी ही percentage से बढ़ेगा, राइट. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैश होल्डिंग के बढ़ने से और या घटने से कैसे प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी पे असर होता है. सो लेट्स सी इन दिस एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एम जो है दिया हुआ है 1000, इनकम रियल इनकम इज 10,000. यूनिट्स क्यों लिखा है, रुपीज नहीं लिखा है, यूनिट्स लिखा है, दैट मीन्स इट इज द रियल इनकम, राइट. के इज हाफ ऑफ दिस रियल इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. मतलब 50% लोग इसका 10,000 में से 5,000 लोग अपने पास कैश होल्डिंग रखना चाहते हैं. अब जो टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सप्लाई होगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज होगी, वो सिर्फ 5,000 की होगी, क्योंकि 5,000 लोग अपने पास कैश होल्डिंग के रूप में रखना चाहते हैं, राइट. नाउ विल सी द वैल्यू ऑफ प्राइस क्या डिटर्मिन होता है वो देखेंगे, और वैल्यू ऑफ मनी क्या आता है वो देखेंगे, इस थ्रू द इक्वेशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मार्शल, राइट. So this is the Marshall का equation. Price is equal to M upon KY. So if we put the values here, ये these values accordingly, M दिया हुआ है 1000, है ना, K is 1/2 और 0.5 लिखो, one and the same thing, 0.5 into 10,000. The value which will come will be after solving, that is 1/5 per unit, right? That is half per unit. मतलब कि price level is half per unit. एक यूनिट के लिए हमको आधे 50 पैसा देना है, राइट. एंड वैल्यू ऑफ मनी इज द ऑपोजिट, दैट इज 1/p, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 5/1 हो जाएगा. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी हियर विल बी 5 यूनिट्स ऑफ गुड पर रुपी. एक रुपए में हमें 5 यूनिट ऑफ गुड्स मिल रहे हैं, राइट. अब सपोज के डिक्लाइंस, मतलब कि अब लोगों ने कैश होल्डिंग थोड़ा कम कर दिया, बोला अभी 50% नहीं, हमने 10% रखना है, 1/10 पोर्शन रखना है, राइट. सो 10% हमने कैश होल्डिंग रखना है. इन दैट केस क्या होगा, प्राइस विल इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन, राइट, अज्यूमिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट है ना, दिस इज आल्सो कांस्टेंट. सो इन दैट केस ये दोबारा से हम लोग वैल्यूज डाल के देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1/10 करो या 0.1 करो, वन इन द सेम थिंग, द वैल्यू विच विल कम विल बी 1 पर यूनिट, राइट. एक आ जाएगा. सो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, अब क्या हुआ, आधे से उतना ही परसेंटेज से, देखिए जितने पोर्शन से आपका कैश होल्डिंग कम हुआ, उतने ही परसेंटेज से आपका प्राइस लेवल बढ़ गया, राइट. हाफ 50 पैसा मतलब हाफ रुपए पर यूनिट था सपोज, राइट. सो अब वो 1 रुपए हो गया वस्तु की प्राइस, और वैल्यू ऑफ मनी कहाँ 5 था, अभी वो 1 हो गया, 1/1 विल बी 1, राइट. सो इट विल बी 1 यूनिट ऑफ गुड. अब 1 रुपए में 1 यूनिट आ रहा है, पहले 1 रुपए में 5 यूनिट ऑफ गुड आ रहा था. सो वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्लाइंड बाय द सेम पोर्शन, राइट. सो दिस इज हाउ द रिलेशन इट इज बिल्ट थ्रू दिस इक्वेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड कैश होल्डिंग, राइट. सो अंडर दिस यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में हम लोग सप्लाई ऑफ मनी का इम्पैक्ट दे रहे हैं, जो कि क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में बताया गया है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने से प्राइस लेवल
भी कैसे सेम प्रोपोर्शन से बढ़ता है उसके बारे में बताया है. सो हियर वी हैव टेकन द नॉमिनल इनकम. नॉमिनल इनकम मॉनेटरी इनकम बोलते हैं ना जिसको, क्योंकि यहाँ पे साथ में प्राइसेस भी लिए हैं इसी एक्सिस पे हमने, राइट. सो दिस इज द अर्लियर मनी सप्लाई कर्व. इसको हमने पैरेलल टू द इस साइड हमने डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी लिया है. यहाँ पे हमने पैरेलल इसलिए लिया क्योंकि इट इज डिसाइडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी जिसका इकोनॉमी मार्केट में कोई काम नहीं है. मतलब कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग मान रहे हैं कि मनी सप्लाई जो है गिवन है, कांस्टेंट है, राइट. सो इट इज गिवन एंड कांस्टेंट, दैट इज द रीजन ये यहाँ पे इस तरह से परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मनी सप्लाई का कर्व OX एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, राइट. देन ये आपका ऑल राइट. सो दिस इज द डिमांड फॉर मनी, अर्लियर डिमांड फॉर मनी कर्व, राइट. सो दोनों का इक्विलिब्रियम इस A पॉइंट पे हो रहा है. सो दैट इज this at this P0 Y dash level of nominal income जहाँ पे equilibrium इस A पे हो रहा है, right, A point पे between the demand for money and supply of money, right. and this Y के ऊपर ये dash आपको दिख रहा होगा, that means income or the real income or the income has been assumed as constant here. Nominal income, sorry, is assumed as constant. So in that case, if money supply increases, obviously वो उसके पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, राइट. ये नया मनी सप्लाई कर्व बन गया. सो इन दैट केस नया इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस एट दैट दिस B, क्योंकि अब लोगों के पास एक्सेस मनी सप्लाई हो गया इतने पोर्शन से. सो वो लोग क्या करेंगे, उसको अपनी वस्तु और सेवाएं खरीदने में खर्च करेंगे, राइट. उससे क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम नॉमिनल इनकम तो बढ़ा ही टू P1 Y डैश, प्राइसेस भी सेम अमाउंट से बढ़ गई. जितने अमाउंट से मनी सप्लाई बढ़ा, other things remaining constant, why remaining constant, what happened to the price, prices has increased. प्राइस के इंक्रीज से नॉमिनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना. नॉमिनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो. वस्तुएं सेवाएं उतनी ही है बट प्राइस बढ़ गया, तो अगर आप GDP निकालोगे प्राइस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज करके, वो ज़्यादा आता है, राइट. हम लोग नेशनल इनकम पूरा पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हमने देखा था कि प्राइस बढ़ने से हम लोगों को एक मनी इल्यूजन वाली बात हम लोग एम्प्लॉयमेंट थियोरी में भी कर रहे थे, तो वो यही है. सो नॉमिनल इनकम हैज इंक्रीज, दैट मीन्स प्राइसेस हैव इंक्रीज टू दिस लेवल, राइट, ड्यू टू दिस एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल. क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतनी है. वाई हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ इसीलिए यहाँ पे. ऑल राइट. नाउ इफ सपोज विल इग्नोर दिस सप्लाई कर्व, बढ़ी हुई सप्लाई कर्व विल स्टे एट दिस मनी सप्लाई कर्व. इफ डिमांड डिक्लाइंस, that is demand for cash holding declines, so वो नया जो कर्व बनेगा डिमांड फॉर मनी का MD dash, right, so वो खिसक के नीचे को आएगा towards the right side. So what happened, the equilibrium will be established on this old money supply curve at this C point, right. So again आपका नॉमिनल इनकम बढ़ के P1 Y dash हो जाता है from A to C, right. आपका इनकम बढ़ जाता है, why, because nominal income, right, not real income, nominal income, that means prices have increased. Again price बढ़ा है P0 to P1. why, because जब लोगों के हाथ में कैश होल्डिंग लोग कम रखना चाहते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसका वो लोग कंजम्पशन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का. अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन गिवन द क्वांटिटी ऑफ रियल इनकम, सो आपका प्राइसेस ओनली विल गेट इंक्रीज, राइट. सो दिस इज हाउ ये बताया है थ्रू डिमांड फॉर मनी, चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी एंड चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी, हाउ the prices will be changed and simultaneously आपका value of money 1/p करेंगे तो वो भी value आ जाएगी, right. all ये इसी के बारे में explanation है, आपको मैंने ये PPT देना है तो that is the reason I have explained it here, right. ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं बाद में. all right, Pigou का equation में आते हैं, मार्शल का हो गया. so that is P here is equal to money supply divided by the portion of real income, R again total real income which people wish to hold in the form of cash. There is nothing a difference between these economists equation. The difference is only of the nomenclature, right. ज़्यादा difference है नहीं यहाँ पे, right. n 1/p करेंगे तो आपको KR/m हो जाएगा ये, right. So that is the Pigou's equation. R here stands for total real income, right. and
1 अपॉन पी, दैट इज पी है प्राइस लेवल, 1 अपॉन पी करेंगे तो परचेजिंग पावर या फिर वैल्यू ऑफ मनी बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। के द पोर्शन ऑफ रियल इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, एम इज मनी सप्लाई हियर, राइट। सिंस मनी इज हेल्ड बाय द कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, इसलिए पीगू ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया अपने इक्वेशन को, और फर्दर इक्वेशन को एक्सटेंड करके क्या दिया, ये नया इक्वेशन जिसमें कि उसने बैंक मनी को भी शामिल किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे उसने बैंक मनी को भी शामिल किया, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स, राइट, जो कि हाईली लिक्विड होते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स को यहाँ शामिल किया। सो 1 अपॉन पी मीन्स वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू, ये मैंने बोला P इज इक्वल टू एम अपॉन के आर, तो 1 अपॉन पी के आर अपॉन एम हो जाएगा ना, के आर अपॉन एम। उसके बाद फर्दर एक्सटेंड करके C प्लस एच इंटू 1 माइनस सी, ये कर दिया। व्हाट इज दिस C? C इज द पोर्शन ऑफ कैश विच पीपल विश टू हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस विद देमसेल्व्स, अपने पास रखेंगे, ये वो पैसा है। H इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व, है ना, बैंक्स में जब पैसे रखते हैं तो कैश रिजर्व रेशियोज रखने होते हैं बैंक्स को, है ना, तो वो कैश रिजर्व जो मैंडेटरी होता है आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर, तो वो कैश रिजर्व जो अपने पास रखते हैं, बाकी का अमाउंट तो वो लोन में दे सकते हैं, बट ये कैश रिजर्व को वो लोन में नहीं दे सकते। सो दैट पोर्शन ऑफ कैश रिजर्व, है ना, जो कि डिपॉजिट्स का है पोर्शन जो कि बैंक्स के पास रहता है, कैश रिजर्व, राइट। तो ये लोगों के पास अपने हाथ में, ये बैंक्स के पास कैश रिजर्व लिक्विडिटी के रूप में। नाउ व्हाट इज दिस 1 माइनस सी? वो पैसा जो इस आर का बच गया है ना, वो पैसा जो इस आर का बच गया है, दैट इज रियल इनकम का बच गया है, ये तो रखा इन्होंने अपने हाथ में, उसके अलावा बाकी पैसा उन्होंने बैंक में डाला है। 1 माइनस सी इज द पोर्शन ऑफ बैंक बैलेंसेस हेल्ड बाय द पीपल, राइट। कुछ अपने हाथ में रखा, कुछ बैंक बैलेंसेस के रूप में रखा। एच इज दिस पोर्शन ऑफ बैंक बैलेंस, जो डिपॉजिट्स है उसमें से जो कैश रिजर्व लोग बैंक्स को रखना पड़ता है, वो एच, राइट। So this is how he extended his equation to include the bank deposits in it, right? So that is the modified equation or the modified version of Pigu's equation, right? So according to Pigu again, K is more significant than money supply. That is, demand for money is more significant than the money supply in explaining the changes in value of money or the purchasing power of money, right? So value of money किस पे depend करता है? वही same demand for money पे। डिमांड फॉर मनी दैट मीन्स कैश होल्डिंग लोग अपने पास जो रख रहे हैं या बैंक्स में रख रहे हैं, राइट। इफ वी अज्यूम दीज थिंग्स कांस्टेंट, के आर सी एंड एच टू बी कांस्टेंट, देन ही सेड दैट वैल्यू ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई आर इनवर्सली रिलेटेड एंड प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई आर प्रोपोर्शनली एंड डायरेक्टली रिलेटेड, राइट। सो यही रिलेशनशिप है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, सो रिलेशन इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, राइट। अगेन सेम कंक्लूजन आपका। So this is the Pigu's curve। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना के, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व विच शोज दैट किसी भी पॉइंट में, मैंने अच्छा उस दिन मैं एक्सप्लेन कर रही थी, इस किसी भी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है वो इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। यहाँ देख लिखा भी है मैंने, डिमांड कर्व फॉर मनी हैज अ यूनिफॉर्म यूनिटरी इलास्टिसिटी। दैट मीन्स क्या, इलास्टिसिटी चेंज दिखाता है ना, change on x-axis and y-axis, right? So change in x-axis from m1 to m2 leads to change in y-axis from p3 to p2। so यहाँ पे value of money लिया है ना, ये p को हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे कि p जो है प्राइस लेवल है, no, it is value of money, p is here value of money। so as money supply keeps on increasing, value of money keeps on declining, right? So money supply पहले m1 था, value of money was this much, right? And ये quantity of money का curve है, q1 m1 is the quantity of money, right? As quantity of money increases, parallelly shift होगा, क्योंकि वो external agency से किया जाता है, right? So ये parallelly shift होगा q2 m2, इतने portion से आपका money supply बढ़ने पे इतने portion से आपका value of money घट जाता है from p1 to p2। Now it comes to p2 here, so equilibrium is here। Then if money supply increases further to m2 to m3, that is q3 m3 आपका नया money supply curve है, so in that case value of money falls to p3 and नया equilibrium will happen at this point, right? So value of money continuously same proportion में
है ना, आप ये गैप और ये गैप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी ये गैप और ये गैप, सो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ, यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलते हैं जिसको, राइट। डिमांड फॉर मनी का कर्व जो है यूनिटरी इलास्टिसिटी दिखा रहा है, दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कांस्टेंट, मतलब कि सेम प्रोपोर्शन में दोनों में चेंज आ रहा है। इस इतने परसेंटेज से ये बढ़ेगा तो इतने ही परसेंटेज से ये घटेगा, सिमिलरली इतने परसेंटेज से बढ़ा इतने परसेंटेज से घटा, राइट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी हैज बीन शोन as if demand supply of money changes, how it will impact the value of money, और प्राइस लेवल वाला कर्व यहाँ नहीं दिया, वो फिशर का सेम यहाँ पे आ सकता है, राइट। सो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल से पीगू के इक्वेशन को सॉल्व करें, राइट। सो के आर अपॉन एम हमें पता है प्राइस लेवल इज इक्वल टू के आर अपॉन एम, है ना, सॉरी यहाँ पे दिस पी के आर अपॉन एम इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ मनी, ये याद रखना, दिस इज वैल्यू ऑफ मनी। प्राइस लेवल होगा तो एम अपॉन के आर होगा, ना, सो के आर अपॉन एम इट इज वैल्यू ऑफ मनी, राइट। सो पी हियर इज स्टैंडिंग फॉर वैल्यू ऑफ मनी, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज, राइट। सो द वैल्यू ऑफ एम इज गिवन एज 100, दैट इज मनी सप्लाई इज 100, राइट, एंड टोटल रियल इनकम क्या है 250 करोड़, रियल टोटल रियल इनकम 250, राइट, दैट इज एंड दिस सॉरी ये हो गया 200 एम कैलकुलेशन एम इज रुपीज 100 crores, total real income of the society is 250 crore, and the percentage of cash, all right, percentage of cash which people wish to hold in the form of cash balances, ये यहाँ पे आई थिंक ये 200 है, मैंने गलत लिख दिया, so sorry, it is 200 here, right। so ये 20 डिवाइडेड बाय 100 क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ दिस रियल इनकम विच पीपल ही विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट, दैट इज व्हाई इट इज रिटन 20 अपॉन 100, राइट, दैट इज परसेंटेज है, 20% है ये, 20%, राइट। सो 20 अपॉन 100 divided by this m is 200 into 250, right। so if we solve this, the value of money will come as 1/4 unit, 1/4 unit, rupee of money will be, value of money will be 1/4 unit of per rupee, right। मतलब value means its value per unit, और अगर हम प्राइस करें, इसका इन्वर्स करें, मतलब कि एक वस्तु इकाई कितने कीमत में मिल रही है, तो वो ऑब्वियसली इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो दैट मीन्स 4, है ना, वैल्यू पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, है ना, दैट इज प्राइस, प्राइस क्या होगा विल बी रुपीज 4, इसका इन्वर्स, राइट। होप यू आर गेटिंग इट। देन कीन्स के इक्वेशन पे आते हैं। कीन्स का इक्वेशन सेज दैट एम इज इक्वल टू पी के, और इफ यू वांट टू डिसाइड दिस प्राइस लेवल, देन क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हियर दिस एन स्टैंड्स फॉर द सप्लाई, द कैश हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, मतलब लोगों के पास जो करेंसी है, यहाँ पे एन ही सप्लाई ऑफ मनी है अंडर दिस, राइट, कैश हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक। P is price level of general goods, P is price level of general goods, that is general price level जिसको बोलते हैं, and K is real cash balances, real balances or the proportion of consumer goods, right। अब आपने ये और इसमें कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है, this portion, this K is the portion of, यहाँ पे जो proportion लिया है वो consumer goods को बोला है ना, किसी ने monetary income लिया है, किसी ने रियल इनकम को लिया है, यहाँ पे कीन्स ने अपने इसमें कंज्यूमर गुड्स को लिया, वन द सेम थिंग, अगेन यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर गुड्स मतलब रियल इनकम ही बोल लीजिए एक तरह से, है ना, सबने अपना अपना तरीके से इसको दिया हुआ है इक्वेशन को। सो के इज दैट पोर्शन है, रियल इनकम की बात कर रहा है, रियल बैलेंस जो दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द रियल बैलेंस, जो कंज्यूमर गुड्स का वो पोर्शन जो लोग अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं। ये कैश हेल्ड बाय जनरल पब्लिक का मतलब है, हम लोगों ने मनी सप्लाई, आप लोगों ने पढ़ा है ना, मनी सप्लाई का डेफिनेशन इज इक्वल टू करेंसी कंपोनेंट्स, अगर हम लोग देखें करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, है ना, करेंसी मतलब ये कैश हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, यही होता है ना, करेंसी मतलब कैश हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक, जो लोगों के हाथ में पैसा, वो कैसे आता है, आरबीआई नोट छाप के बैंक्स को देती है, बैंक्स आरबीआई से लोन लेके अपने पास लेता है, और वही पैसा लोगों के हाथ में जाता है, यही होता है मनी सप्लाई, राइट। सो ये कंफ्यूज मत होना प्लीज इस पे, ये एन और के बीच में कि ये तो सेम ही चीज लिखी है, सेम चीज बिल्कुल नहीं लिखी है, राइट। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ रियल इनकम विच और कंज्यूमर गुड्स जो लोग अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं, दिस इज द मनी सप्लाई, राइट।
All right, again, under the Keynes equation also, if we assume this k to be constant, again there is an direct and proportionate relationship between price level and supply of money. If this increases, this will increase. If this declines, price level will also decline. If assuming this thing constant, that is the value of k constant, right? कीन्स ने भी फर्दर अपने इक्वेशन में क्या बोलते हैं बैंक मनी को इंक्लूड करने के लिए और एक्सटेंड किया अपने इक्वेशन को, एंड प्राइस लेवल इज इक्वल टू एन के था, प्राइस इज इक्वल टू एन के था, उसको फर्दर एक्सटेंड किया, एंड अंडर दिस ही हैज इंक्लूडेड द बैंक मनी एज वेल, के प्लस आर के डैश हो गया, राइट? दैट मीन्स ये जो के डैश है इज द रियल बैलेंस हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक मनी और द बैंक डिपॉजिट, है ना? के वो पोर्शन लोग अपने पास करेंसी के रूप में रखना चाहते हैं, के डैश वो पैसा जो लोग अपने कंज्यूमर गुड्स बैंक डिपॉजिट्स के रूप में रखना चाहते हैं, राइट? सो अगेन इस इक्वेशन को भी अगर हम लोग इफ वी अज्यूम दिस एंड दिस एज कांस्टेंट, अगेन देयर विल बी एन डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, right? And inverse relation between the value of money and quantity of money, right? One and the same, right? All right, going to the last equation that is given by Robertson's equation. Robertson का equation is m is equal to kpt, right? So again the बहुत simple है यहाँ पे as compared to Keynes, तो बहुत ही simple है इसका equation, है ना? And very similar to the Roberts आगे Marshall का equation, right? And as well as आपका पीगू का इक्वेशन, के बहुत सिमिलर है। यहाँ पे टोटल ट्रेड ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, के इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल ट्रेड ट्रांजेक्शन विच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट? इफ वी वांट टू ड्रॉ द वैल्यू ऑफ प्राइस फ्रॉम हियर, राइट? प्राइस लेवल क्या है वो डिटर्मिन करना है, सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एम ये के टी इधर चला जाएगा, एम अपॉन के टी, राइट? So if we assume again k and t to be constant, the relationship between price level and money supply will be direct and proportional, and value of money and quantity of money will be inversely related, right? So यही है, ये रॉबर्टसन का इक्वेशन है। क्रिटिसिज्म, फिर आपके बाद इसका डिफरेंस, देन सिमिलैरिटीज, सुपीरियरिटी, ये सारा हम लोग